माझं नाव आहे स्वाती जोशी and you're watching the election yatra. Fate of political bigwigs like the Deputy Chief Minister of Maharashtra Devendra Fadnavis, the Congress Chief Nana Patole, BJP Chief Chandrasekhar Bawankule and Leader of Opposition Vijay Wadettiwar will be sealed in Vidarbha that has 62 assembly constituencies and one of them is Nagpur. Times Now's election yatra is in the Vidarbha region of Maharashtra. A region that has always played a critical role in deciding who forms the government in Maharashtra. Some of Maharashtra's most popular leaders of the current generation hail from this region, be it Nitin Gadkari and Devendra Fadnavis of the BJP, or Nana Patole and Vijay Wadettiwar of the Congress. In the current assembly poll race, 36 out of the 76 seats which will witness a direct contest between the BJP and Congress are in this region. The Aghadi witnessed a comeback of sorts in 2024 Lok Sabha polls, winning 7 out of 10 seats in a region that was once dominated by the BJP. Hitting the campaign trail, Times Now has decided to find out which way are the winds blowing in this region this time around. Nagpur geographically is at the center of India, known for two important ideologies. This is where the RSS headquarters is situated. Then you also have the Diksha Bhumi, which is right behind me, and this is where the architect of the Indian Constitution, Dr. Babasaheb Ambedkar, renounced Hinduism and converted to Buddhism in 1956. Talking about the Nagpur seat, Lok Sabha seat of Nagpur has 6 assembly constituencies and 4 of which right now are with the BJP. The BJP has extended its dominance in Nagpur, with Nitin Gadkari winning the last 3 Lok Sabha elections from here. In the assembly elections in 2019, the BJP managed a vote share of 46% in this region as compared to 41% of the Congress. Nagpur is also known as the Orange City of India. Now, as the election date is nearing, the campaign is getting fierce. Both the Maha Vikas Aghadi and the Mahayuti are batting on the front foot. We spoke to the leader of opposition of the Maharashtra Assembly, Vijay Wadettiwar, on MVA strategy and a lot more. The current leader of opposition in Maharashtra, Vijay Wadettiwar, is also looking to win his 3rd straight election in Brahmapuri. Securing nearly half of the votes in the constituency in 2019, Wadettiwar is eyeing a hat-trick from here. Well, as the voting day nears, the campaign is getting intense and fierce, and we got some time to catch up with the leader of opposition in the Maharashtra Assembly, Mr. Vijay Wadettiwar. Thank you very much for joining us. आपकी कोशिश तो यही होगी कि इस बार ऑपोजिशन में महायुति बैठे। मैं 2 बार लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, तो इस बार तो नहीं बनूंगा। मैं इस बार रूलिंग पार्टी में ही रहूंगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा विश्वास कहता है। वजह भी है कि पिछले 10 सालों में जो सरकारें आती है जाती है, और ये सरकार जो बनी है ये महाराष्ट्र के लिए नहीं बनी। ये सरकार गुजरात की भलाई के लिए बनी है। गुजरात को डेवलप करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार बनी है, और ये तो लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इनको ये सरकार को गुजरात में ही गुजरात को ही भेजना चाहिए। ये आरोप बहुत सारे लोग एमबीए में लगा रहे हैं, इसके पीछे की क्या पीछे की राजनीति से इसमें देखिए, आप जितने यहाँ पे इन्वेस्टर थे यहाँ आए और यहाँ से गुजरात चले गए, करीबन 5.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो थी महाराष्ट्र की, ये गुजरात क्यों गई, किस वजह से गई? यहाँ पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो है 70% गुजराती लोगों के हाथ में है। क्या महाराष्ट्रियन कॉन्ट्रैक्टर नहीं है? यहाँ की जमीनें
मुंबई से लेकर गुजराती इंडस्ट्रियलिस्ट को दी गई, वो करीबन आपको बता दें कि आज की वैल्यू, मार्केट वैल्यू 4 लाख करोड़ से ज़्यादा है। अगर उसको मार्केट की ओपन वैल्यू पकड़े तो ये क्या प्रो गुजरात सरकार नहीं है? इसका यही जवाब है। आप लोग कैंपेन कर रहे हैं दिन रात, लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, तो रिस्पांस आपको कैसा मिल रहा है? अच्छा रिस्पांस है लोगों में। ये रूलिंग पार्टी के विरोध में एक वेव दिखती है मुझे, जो पार्लियामेंट में थी वही असेंबली में है। मुझे तो दिख रहा है कि लोगों में बहुत अलग करंट है और ये चाहते हैं कि महायुति की सरकार नहीं बने, महाविकास आघाड़ी की सरकार बने। ये महंगाई, किसानों की हालत, यहाँ पे बेरोजगारी, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा प्रश्न सवाल है। रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात बड़ी ज़ोर से चल रही है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बहुत 2 लाख नौकरियाँ कॉन्ट्रेक्चुअल यहाँ पे बनी जा रही है, वहाँ तो कोई रिजर्वेशन होता नहीं है। तो जो मनमौजी कारोबार चल रहा है, किसानों को तो बहुत ही बुरी हालत है। कई सारे मुद्दे आपने उठाए, आपने किसानों का मुद्दा उठाया, आपने महिलाओं का मुद्दा उठाया, रिजर्वेशन की जो आप बात कर रहे थे। आरोप महायुति की तरफ से ये लगाया जा रहा है कि आप लोग जो है अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आप लोग रिजर्वेशन खत्म कर देंगे ओबीसी, एससी, एसटी का, और उसको आप माइनॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट। मैं एक वीडियो सुनाऊं अमित शाह जी का, आप देखना चाहोगे? अमित शाह ने खुद ने बोला है झारखंड के रांची में, हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग एससी, एसटी, ओबीसी का असंवैधानिक रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। अब किसकी बात करते हैं ये? राहुल गांधी के भाषण को बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कहा था, उस बात को लेकर उन्होंने कहा था कि हम लोग बराबरी में जब जिस दिन आएंगे, यहाँ का पिछड़ा हो, आदिवासी हो, दलित हो, उसकी वो इक्वेलिटी की बात करते हैं, वो बराबरी की बात करते हैं, और विषमता मिटाने की बात राहुल जी ने कही थी। और उसी को मरोड़ कर इन्होंने कहा था कि जिस दिन हम बराबरी में आएंगे उस दिन हमारे यहाँ रिजर्वेशन नहीं होगा। क्या आज हम बराबरी में हैं? कहाँ पे है? शासन में, प्रशासन में? तो कितना बड़ा इसमें दोनों में अंतर है, ये बात उन्होंने रखी। पर हमारे अमित शाह जी ने तो क्लियर कट कहा है, आपको मैं वीडियो सुनाता हूँ उनका पूरे भाषण का। ये दोगली नीति है भाजपा की, जुमले की नीति होती है। अच्छा, बीजेपी ये भी कह रही है आरोप करते हुए कि आप लोगों को जो लोकसभा में फायदा हुआ वो वोट जिहाद की वजह से हुआ, ये देवेंद्र फडणवीस का बयान है। अब ऐसे इन लोगों को भाजपा खतरे में होता है तब वोट जिहाद, हिंदू खतरे में है, मंदिर मस्जिद, और कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये खतरे में होते हैं तब ये बातें आती है। तो बीजेपी खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं है? हिंदू खतरे में बिल्कुल नहीं है, बीजेपी खतरे में होती है तब ये बातें उनकी जुबान पर हमेशा आती है। अरे वोट विकास के नाम पे मांगो ना, जो डेवलपमेंट किया है, जो तुमने कुछ कहा है, कुछ किया है तो उसमें मांगो। राजनीति क्या होती है? सरकारें क्यों बनती है? धर्म के लिए बनती है, मंदिर मस्जिद के लिए बनती है। ये कटेंगे बांटेंगे वाली बात है, जो काटने वाले, जो बांटने वाले, वही बात कर रहे हैं, जो अंग्रेज की नीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस हिंदुस्तान में जो पहले की राजनीति थी, कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं थी, अंग्रेजों ने लाया, वही बीजेपी चला रही है। तो इनको क्या अधिकार है? मैं कहता कि ये दोगली नीति है, ये क्लियर है, और इन लोगों से जनता बहुत अभी सावधान होते नजर आ रही है। नाना पटोले जी की अभी रीसेंट स्टेटमेंट पर पॉलिटिक्स हो रही है, जिसमें उन्होंने बीजेपी की तुलना एक कुत्ते से की। बीजेपी कह रही है फ्रस्ट्रेशन है, कुछ नहीं है, दिख रहा है एमवीए को कि हम हार रहे हैं, इसीलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। आपका क्या मानना है? नहीं, देखिए, एक कम्युनिटी को लेकर बीजेपी के नेता ने एक बयान दिया था, शायद आपको पता नहीं होगा। वो हमारे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के वनी में एक बीजेपी नेता ने कहा था कि कम्युनिटी एक कुत्ते जैसी है। तो उसी को लेकर, वही कम्युनिटी से हमारे नाना पटोले जी आते हैं, उसी कम्युनिटी को बीजेपी नेता ने कहा था कि इलेक्ट्रिक का पोल दिखे तो ये कुत्ते जैसा काम करते। ये बात किसने की? भाजपा नेता ने की। तभी तो गुस्से में आकर कहा उन्होंने। अब ये बातें तोड़ मरोड़ कर दिखाई जाती है, सच्चाई बाजू में रखी जाती है। ये इसीलिए नहीं है, उसका जवाब था। वो किसी समाज को लेकर ऐसे बयानबाजी करना, उनका अपमान करना, ये क्या ठीक बात है? ये उचित बात है? ये हमारे संस्कार में है, संस्कृति में? तो भाजपा दोगली में कहता हूँ कि ये जुमलेबाजी हमेशा उनकी होती है, फेक नैरेटिव उनका हमेशा होता है, ऐसे बातों को घुमाकर गलत बयान को मोड़ तोड़ कर लोगों के सामने रखना।
ये हार और पराजय होता हुआ दिखता है, तब ऐसी बातें वो सामने लाते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने जिस शो पर आप हैं इलेक्शन यात्रा उसकी बात कर रही हूँ। मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र गई, मैं विदर्भ में आई हूँ, मैं मराठवाड़ा गई, थाने मुंबई रीजन मैंने कवर किया, वहां के इश्यूज की बात की। और इसीलिए जब विदर्भ की मैं बात करी इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि ओबीसी, ट्राइबल्स, दलित्स 80% इलेक्टोरेट्स हैं और विदर्भ में लोकसभा में जो हुआ हमने देखा वो पोल मोमेंटम जो है वो मेंटेन्ड रहेगा असेंबली इलेक्शन में एमवीए के लिए 100% रहेगा, विदर्भा में रहेगा। मैं बाकी रीजन में उतना मैं डेप्थ में मैं मालूमात नहीं लिया हूँ, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में नहीं है, पर विदर्भा में ये रहेगा। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी और ओबीसी, ये मुझे काफ़ी झुकाव महाविकास आघाड़ी की तरफ मुझे दिख रहा है। और जब विदर्भा में अराउंड एक 42 सीट्स पर हमारा सीधा मुकाबला है। जब हम सीधा मुकाबला करते हैं विदर्भ में तो कांग्रेस जीतती है। वोट डिवीजन नहीं होता है तो हमें फायदा होता है। और हमारे ये 42 सीट्स में 33 सीट्स पर कोई भी हमारा थर्ड फोर्स वहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो हम लोग स्टेट फाइट में हैं। जब मुकाबला भाजपा वर्सेस कांग्रेस होता है तो हम लोगों को फायदा होता है और निश्चित रूप से वो दिखाई देगा। तो क्या आपको इस आधार पर लगता है कि कांग्रेस को शायद ज्यादा सीटें लड़नी चाहिए थी, अलायंस की वजह से कुछ कॉम्प्रोमाइजेस आपको करने पड़े? नहीं, ठीक है, हम लोग 40 सीट्स पर लड़ रहे हैं, ऐसे कोई कम भी नहीं है। हमने 45 सीट्स पर कंटेस्ट करने का सोचा था। एक अंदाजा था कि हमको 45 सीट्स तक हमको जाना चाहिए, बट ठीक है, वो ये अलायंस 1-2 पार्टनर थे, हम लोग तीसरा पार्टनर आ गया तो सीट शेयरिंग में तो कमी तो होगी। हम हमेशा कहते हैं कि भाई 2 भाई की जगह 3 भाई होगा तो बंटवारा तो हिस्से में कम आएगा, तो कोई नेचुरल बात है। हमारे लोग भी, हमारे वर्सेस भी वैसे समझते हैं और हम लोग अच्छे रिजल्ट विदर्भ में दिखे। आखिरी सवाल मेरा ये कि सीटों का अनुमान आपका क्या है महाविकास आघाड़ी के लिए, और फिर आप जानते हैं कि हर कोई सीएम फेस पर सवाल पूछेगा। मैं 2019 की बात करूंगा। वेव तो चल रही थी, 2014 पे आप जाइए तब भी वेव चल रही थी, मोदी वेव चल रही थी। अब जुमलेबाजी इतनी हो गई थी कि बहुत जोर से वेव चली थी। फिर भी कांग्रेस तब भी 44 थी। 19 में भी हम लोगों को कहा जाता था कि सिंगल डिजिट पर कांग्रेस होगी, फिर भी हम उतने वेव में 45 सीट्स हमको मिली। और आज तो वो सिचुएशन नहीं है, चाहे वो राष्ट्रवादी हो या हमारे हम अलायंस पार्टनर, हमारे अलायंस दोनों ही थे, हम अलायंस में एनसीपी और कांग्रेस। तो हमें उस पीरियड में भी 19 में भी हम दोनों को मिलाकर 100 सीट के पास हम लोग गए थे। उद्धव ठाकरे जी को हमने बाजू में छोड़ा था। उद्धव ठाकरे भी इंडिपेंडेंस कॉन्टेस्ट किए थे, तब भी उनको 54 सीट्स उनको भी मिले थे, 56 सीट्स। क्या आज भी कितनी भी बुरी स्थिति होगी या कितना भी पटक ले बीजेपी और महायुति, हम लोग कभी भी 50 सीट के नीचे कोई भी पार्टी नहीं आती है। राज सवाल सीएम का, तो मुझे लगता है कि बैठकर कोई देखो अलायंस नहीं होगा महाविकास आघाड़ी का, सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, बहुत अटकलें लगाई जा रही थी। पार्लियामेंट में भी ऐसे अटकलें लगाई जा रही थी, फिर भी हमने किया, असेंबली में किया। ठीक है, 3 पार्टियां हैं, थोड़ा बहुत होता है, पर हमसे तो बदतर हालत उनकी थी, सरकार में थे। अमित शाह का रिमोट था, मोदी का दरारा था, फिर भी उनको इतने दिन लगे, आखिरी तक खींचना पड़ा, 10 बार दिल्ली भागना पड़ा। तो ये सब सिचुएशन में हम लोग सरकार बना लेंगे, सीएम भी हमारा होगा, गवर्नमेंट भी हमारी होगी। चलिए, इस बार ऑपोजिशन में आपको नहीं बैठना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू योर पार्टी। In the Vidarbha region, the farmers remain amongst the significant contributors to the local economy. In the cotton belt of Maharashtra, there is simmering discontent amongst the farmers over low prices, and the local farmers are demanding an increase in the MSP. In this fierce battle in the Vidarbha region, both alliances will want to get the farmers on their side, which is why we decided to find out what exactly the farmers need and who they believe will deliver on the promises. हमको
हमको तो रोजगार की तो कोई कमी नहीं, इधर करने जाओ तो बहुत है काम, पर जो नई पीढ़ी है खेती में काम नहीं कर रही, उनको ड्यूटी होना। सब अपने अपने पढ़े लिखे और पढ़े लिखे भी लड़के हमारे यहाँ पे खेती कर रहे, ऐसा भी है ना। तर जे मजुरी करतात त्यांची काय समस्या, तुम्हाला बरोबर भाव मिळतो का? मजुरी मिळते पण हे शेतमालाला भाव नाही मिळत ना, दुसऱ्याजवळून आम्ही करतो. आणि तुमची काय अपेक्षा आहे सरकारपासून? हे कपासले किंवा सोयाबीनले कोणी मालाले तुरीला हे भाव मिळाला पाहिजे बा, हे अपेक्षा आहे, दुसरं काही नाही. Aside from politics, Maharashtra has a lot more to offer. And as we crisscross through the state, we decided to make a pit stop at the Ramji Shyamji Pohawala. नागपुर आए और रामजी श्यामजी का तरी पोहा नहीं खाया तो क्या किया? That's what all of my friends have been telling me ever since I have come here to Nagpur. So I am at Ramji Shyamji. This is the poha. The poha is right in front of me with the tari and the curry. And we also have the owner of Ramji Shyamji, Mr. Ramji, joining us on the broadcast. बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए. बहुत बिजी है आपकी दुकान में, देख रही हूँ लोग लगातार आ रहे हैं. तो क्योंकि चुनावी माहौल भी है, लोग चर्चा भी करते हैं क्या चुनाव पर पोहा खाते खाते? करते हैं, ऐसा नहीं है. देखिए, लोग संतुष्ट हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, काम होना चाहिए. काम बोलेगा तो आगे बढ़ेगा आदमी. राजनीति और खाना साथ साथ में बात करते हैं, तो अब मुझे आप बताइए कि इस पोहे में क्या क्या है? जैसे पोहा है, सेंगदाना है, इसमें कड़ी पत्ता है, प्याज है, मिर्ची है, बाकी ये चना रस्सा है, ये तरी. स्पेशल ये है, तर्री है. हाँ, मेन ये चने की तर्री चने है. का तरी. चलिए, इसको मैं कितना ऐड करूँ आप बताइए, कि मैं बहुत तीखा नहीं खाती. देखिए, ये आपके ऊपर है कि आपको कितना तीखा लगेगा. हाँ, ये बहुत तीखा, पहले ही मुझे वार्निंग दे रहे हैं कि बहुत तीखा है. नहीं, एकदम आपको अगर लगता है हाँ. तो तीखा है. चलिए, मैं थोड़ा सा इसको हाँ, डालती हूँ. बिल्कुल. और ये साथ में कड़ी भी है. हाँ, अगर कढ़ी लगता है तो ले सकते हैं, वैसे इसमें कढ़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती है. इसमें कड़ी नहीं डलती है, लेकिन नहीं. किसी को बहुत तीखा लगेगा तो हाँ, तो ले टेस्ट करने सकते. के लिए ले सकते हैं. चलिए, और नींबू निचोड़ दूँ? हाँ, तो मैं ये नींबू इस पे निचोड़ देती हूँ. And this is the uniqueness of the poha. Now, I'm from Mumbai, so I have had the poha there in Mumbai. It's made at my home. I've had the Indori poha also in the north, but this is very different. So this is served with the tari, which is right here. And in case you want to neutralize the spices a bit, you can add the curry also. Let me taste it first, and then we'll continue our conversation with Mr. Ramji. Nothing like I've ever eaten before. I've never tried this combination, also because it's only available in Nagpur. राम जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एक बात बताइए, आप महाराष्ट्र के ही हैं क्या? नहीं, महाराष्ट्र से नहीं, हम वाराणसी से हैं. हाँ. यहाँ हमारी चौथी पीढ़ी है. जब नागपुर कभी एमपी में रहा करता था, तब से हम हैं, और हमारा आना जाना वाराणसी रहता है. हम 4 भाई हैं. महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये त्याग वाले बयान भी बहुत आ रहे हैं कि अगर आपको युति में या महाविकास आघाड़ी में अन्य पार्टियों के साथ रहना है तो कभी कभी त्याग भी करना पड़ता है. नहीं, बदली है महाराष्ट्र की राजनीति? बदली, अरे बहुत कुछ बदली है. पहले जो है कुछ सरकार थी, अभी कुछ हो गई, तो ये बदलती है. ये लोगों को जो है सिखा रही है कि क्या बदली है और क्यों बदली है. ये लोग खुद जो है मौन है. अभी ये चुनाव के बाद पता लगेगा कि क्या इसका रिजल्ट है. अच्छा, बताइए मुझे कि दिन भर में कितने ग्राहक आपके आते होंगे सुबह से, और कब तक दुकान खुली रहती है? देखिए, हमारा 5:30 बजे सुबह से चालू होता है और 4 बजे शाम तक रहता है. और कितने आते हैं ये तो हम बयान नहीं कर सकते हैं. लोगों का प्यार है हमारे प्रति कि कितने आ रहे हैं, इसकी बयान. तो आप भी अपने दिन की शुरुआत इसी पोहे से करते हैं? हाँ, शुरुआत यहीं से होता है और यही हमारी रोजी रोटी है. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. आपका पोहा वाकई में बहुत यूनिक है. मैं चाहती हूँ कि जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, जब भी देखिए, नागपुर आए यहाँ, कोई भी धंधा हो, कस्टमर की संतुष्टि ही दुकानदार की प्रगति है. बिल्कुल. अगर कस्टमर संतुष्ट नहीं है तो दुकानदार की प्रगति नहीं हो सकती. दूसरी बात, पहले खुद पे घटाओ, फिर दूसरों पे घटाओगे तो कभी गलत नहीं होगा. महाराष्ट्र में लोग कहते हैं मुलगी शिकली प्रगती झाली. आप कह रहे हैं कस्टमर की संतुष्टि झाली तर प्रगती झाली. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
And it's now time for us to wrap up the Nagpur episode. Let me quickly introduce you to the team. This is Pranjal. All the coordination work was done by him. All the guests that you saw, he has lined them up. Now it's time for our camera team. This is Praveen, Nitin, Kiran, Sachin. We are wrapping up the Nagpur episode on a sweet note with this very, very, very famous orange burfi from Nagpur.